So I think you all know about iNeuron, right? So have anyone learned from the iNeuron? Okay. Great, great, I'm great. So currently I started think many watching of you, Krishna. you are from the iNeuron batches, and I used to take the classes in iNeuron. So when I was iNeuron, so I was doing the mentorship also. I think you know Chris Nayak, right? So Yes. like I was in in his team only. So and I think currently he's like preparing some like Udemy courses and all. Maybe you know or you don't know. I think you have checked his like LinkedIn post or maybe this YouTube post. So soon I will be also there. Means I have also a plan to like create some courses. Okay, apart from the iNeuron, because previously we were like teaching over there, but as you know, right, iNeuron they sold the iNeuron and it does not they are not uploading any sort of a new courses and all. And as a mentor, basically, like we have a habit to teach something. So right now, like I'm teaching on my YouTube as well, but yeah, soon I'll be like coming up with some like a different portal as well. We are planning for that, and along with this like this Udemy and all. So yeah, guys. So you can ask any sort of a question related to the data science, generative AI, okay, or in whatever data related field, like you want to be enter. So we can have a kind of discussion. So we can discuss about the project, technology, tech stack, and all everything, whatever in your mind. So yeah, please go ahead, guys. Anyone? Anubhav, I think you were saying something. Anubhav Pandey, you were saying like about your experience and all. I had a very Hmm. basic question Hmm. around that. Every now and then, I mean, we are experiencing that new tech stack, new tools are coming. Hmm. That for the people, I mean, I'm not the only one. There are a Hmm. lot many people who are trying to switch from, I mean, non-tech to tech field. Hmm. So how to cope up with those things? Because I mean, people, it's very easy nowadays to get confused, right? Hmm. Hmm. So, I mean, how to cope up with those things? Plus, there are challenges in and around key if Chat GPT and similar tools are there in the Hmm. market. Hmm. What is the scope left Hmm. for the for the data scientist or for the ML engineer? So scope I see what I have observed in the market in a real time. Okay, there are a couple of things like which is really going on, and the time basically in the next 5 year, right? Next 5 to 10 year, basically you will see the this thing actually this technology is dominating the market, right? The first thing which I would like to highlight over here, the evergreen thing, which is a data engineering part. Okay, in every company, like people require the data engineer because until we don't have data until we are not going to integrate the data, okay, so like our further team cannot do anything. Like as a generative AI engineer, as a data scientist, as a machine learning engineer, I cannot do anything. So if you want to enter into this industry, let's say if you want to enter into this data industry, the first and foremost thing I would suggest to all of you, if you haven't entered so far, first and foremost thing I would suggest to all of you, go with the data engineering. Okay, start learning data engineering, start learning SQL, Python, Spark, Airflow, okay, these kind of things. And one more thing, like this cloud, okay. Pick any one cloud, AWS and Azure. Try to learn those services which is related to the data engineering and all, and like you can easily make a transition. Now the second thing, which Anuva was asking, Anuva was saying, is industry is going to be like in this industry is very dynamic. Like on a like daily basis, you will find out something new, right? So I would say Anubhav, see, here inside this industry, right? The concept is same. Okay, means let's say we are talking about data science. Data science is remains same. Okay, we have mathematics over there. We have like machine learning over there. Okay, we have like a programming language. We have databases. On top of it, we are going to build the application, right? But the tool, okay, the tools and technology, okay, which can support to that particular concept. That's a new one. Okay, on a daily basis, basically, it is going to be update. Let's say you are working as a data scientist. You are going to create any end-to-end project. Okay, where actually what you need to do, you need to create a end-to-end MLOps pipeline, right? So how we are going to create? If you will see, like 2 to 3 year back, people were creating it manually, complete manually, and they were facing a lot of issue while they are deploying that particular pipeline. But nowadays we have many automated platform for that. Okay, so the concept is same. We have to create a project, we have to deploy it, we have to build it, but there are lots of automation in the market. There are lots of supporting tools. Okay,
So we need to understand the concept. The base will be same. The tech stack will be same. Means the tech will be same. Where we have to build something, we have to deploy something, but we need to cope up with the recent tool, the recent platform, which is supporting to that technology. Similar into the generative AI as well. Inside the generative AI, what we are doing. So we are having those large model. Okay, using those particular model, we are going to create an application surrounding to those model. Getting my point? So we need to understand that what all kind of application we are going to create, what all kind of frameworks we have for that. Okay, if any new framework is coming, how we have to learn that, how we have to adapt that. Okay, that's it. So what I want to say over here, I want to say the base is same. On top of it, okay, for supporting that particular base, the tag, and like many different thing is coming. So if your base is clear, anything you can understand on top of it, that's it. And as a techie, right? Let's say I'm a techie, so it's not a big thing for me. Okay, because see, right now what I've seen, this ad tech market, okay, it's going to be a very much saturated, and because of that, like people are having a lot of distraction in their mind. What we need to learn, what I which course I need to go and all. No, you don't need to focus on that part. If you are getting stuck with this like video kind of thing, okay, video tutorials and all, and this course, that course, you won't be able to complete anything. And believe me, guys, you are just going to waste your time. This course is just for helping you. Means you can take a reference of those courses, you can learn. If you're not getting something, that's it. But how you have to build the application, how you have to like create the like solution by reading yourself. Okay, there is a documentation, there are lots of material over the YouTube and internet. Just utilize that material, build something, that's it. Okay, and like this tech industries work. Which is my observation. And this course and all, yes, you can join. I won't say like you should not join any sort of a course. You can join, you can take a reference of that. If let's say you are very much beginner, in that case, definitely you can go through with that. But don't get into the trap with any sort of a course. This is my suggestion to all of you. Got it, guys? Yes or no? I think I agree with you, Sunny. Yeah, हम्म। courses cannot be like हाँ भाई, मतलब cannot give आजकल you क्या है, everything. मतलब हर कोई अपना कोर्स ही बेच रहा है यार, क्या ही मतलब। Yes, नॉट अ too much. लाइक But गुड थिंग। मतलब देखो, एज अ टेकी ना, मैं I मेरे have को तो क्या लगता है कि हम कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं अगर हमारा बेस क्लियर है। जस्ट बाय रीडिंग द थिंग, जस्ट बाय डूइंग आवरसेल्फ, एनीथिंग वी कैन डू। सी, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, ओके। अभी तो चैट जीपीटी से भी हेल्प लेके आप थोड़ा बहुत ट्विक कर सकते हो. Why? And there are lots of people who is a senior to me. Okay, like Anubhav said, he is having a good experience, and there are lots of people. You can ask with any sort of a person. Whenever we have to build the application in real time, ना कोई भी कोर्स आपका हेल्प कर ही नहीं सकता है नहीं कर भाई पाता. उधर। उसके लिए तो भाई खुद ही बैठना पड़ता है चेयर पे, खुद ही कोड लिखना पड़ता है बैठ के। ठीक है। तो और ज्यादातर कोर्सेज तो स्पून फीडिंग कर रहे हैं, मैंने ये बात देखी है बहुत सारे लोग. ऑब्वियसली मैंने भी मतलब। कोर्सेज करे हैं. हम्म। तन्मय का भी एक्सपीरियंस आई थिंक तन्मय एग्री करता है मेरी इस बात से. वही। तो तो आप लोग अभी कहाँ काम कर रहे हैं कि यू आर सर्चिंग फॉर द वर्क ऑन और व्हाट सो मींस। मैं नॉन टेक डोमेन में काम कर रहा हूँ ऑलरेडी. मैं ओके। फ्रीलांस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स में. और ओके, ग्रेट। साइड बाय साइड मैं लुक कर रहा हूँ डेटा साइंस डेटा Okay. एनालिस्ट. Yeah, so Jay is here. Jay, tell me anything. मेरा भी एक्चुअली मेरे भी 10 से 12 साल का नॉन टेक इंडस्ट्री का वर्किंग हम्म। एक्सपीरियंस है. हम्म। बट डेटा ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन हमारा भी है कि हम्म। डेटा साइंस में आने के लिए ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 10 इयर्स प्लस में एक्सपीरियंस है. हम्म। तो जैसा कि अनुभव पांडे सर ने बताया कि ऑलरेडी वो स्टील प्लांट्स हैं, तो मुझे हम्म। किस टाइप का प्रोजेक्ट एक्चुअली शो करना है वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है एक्चुअली. मशीन लर्निंग का डिफरेंट प्रोजेक्ट है, डीप लर्निंग का डिफरेंट, एनएलपी डिफरेंट है. बट हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मुझे क्या रियल टाइम प्रोजेक्ट दिखाना है उसके लिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगता है. प्रोजेक्ट वाइज तो देखो ऐसा है कि प्रोजेक्ट वाइज मतलब मैंने आपको बोला ना कि देखो ऐसे कुछ कोर्सेज भी हैं, जैसे कि हम आइनीरॉन में ही बेचते थे। मतलब कुछ कोर्स, उन्हीं कोर्सेज में हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट करना सिखाते थे। ठीक है ना। तो आजकल तो वो एंड टू एंड प्रोजेक्ट सारा सब यूट्यूब इधर उधर कहीं भी मिल जाएगा। तो कोड वगैरह आप ले सकते हो, उससे कोई भी आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है ना। देखो अभी टेक में ना एआई में अच्छा पैसा है। दैट्स व्हाई पीपल आर मूविंग टू दैट वन। मतलब आज से अगर देखो 10-15 साल पहले देखा जाए तो उतना पैसा टेक में नहीं होता था। मतलब लोग पीएचपी सीखते थे, जावा सीखते थे, सॉफ्टवेयर बिल्ड करते थे, बनाते थे। हार्डली मतलब 5-10 साल एक्सपीरियंस के बाद लोगों को 12-15 लाख का पैकेज मिलता था, जो कि आज एक फ्रेशर को या क्या बोलते हैं, कोई भी 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी मिल जाता है। ठीक है।
तो मेरा सजेशन यही है, देखो अगर आप डेटा की तरफ मूव कर रहे हो तो वहां पे यू विल गेट अ गुड पैकेज, ओके, यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। आपको इवन यू कैन अर्न इन करोड़ एज वेल, ओके, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में वो भी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा, अगर आप नॉन टेक से हो टेक में स्विच कर रहे हो, तो जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना, उसी को इन इन द फॉर्म ऑफ डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में दिखा दो। मतलब अपने जहां पे भी आसपास थोड़ा टेक का काम चल रहा हो, थोड़ा बहुत उन लोगों के साथ बैठ जाओ, ठीक है ना। अपने मैनेजर से डिस्कस कर लो कि भाई ऐसा ऐसा है, जो भी है, कि आपने लीड से या जो भी आपके साथ कॉलीग है ना, कहीं पे भी आपकी इंडस्ट्री में आसपास आपको लगता है कि भाई यहाँ थोड़ा टेक का काम चल रहा है, उनके साथ बैठ जाओ, डिस्कस कर लो प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट को बस अपन को एक वर्बली समझना रहता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कोड करके देख लो एक दो प्रोजेक्ट खुद से, और उतना ही इंटरव्यू में बताना रहता है बस। एक बेस, मतलब मैं इंटरमीडिएट लेवल पे बोल रहा हूँ, क्रैक करना एक इंटरव्यू, ठीक है ना। मैं नहीं बोल रहा कि आपको बहुत ऊपर प्रोडक्ट बेस में अभी क्रैक करना है, पहले एक छोटे लेवल पे क्रैक कर लो। कोई एक स्टार्टअप में घुस जाओ, कोई एक अपना जो भी है सर्विस बेस में घुस जाओ, वहां पे कुछ एक अच्छा काम कर लो, देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन। ऐसा कर सकते हो, मतलब और ऊपर के लिए, क्योंकि देखो काम का कोई इसमें ना कोई एंड नहीं है। वी डोंट हैव एनी लाइक लिमिटेशन ओवर देयर, ओके, लिमिटेशन इज जस्ट योर लाइक जस्ट योर कैपेबिलिटी, मतलब आपकी कैपेबिलिटी कितना है वही एक लिमिटेशन है बस। ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रोजेक्ट नहीं है, काम नहीं है। गूगल में जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे भाई, खूब सारे प्रोजेक्ट हैं, खूब सारा काम है, ठीक है ना। मतलब हर एक कंपनी में, इवन स्टार्टअप, आजकल तो स्टार्टअप भी इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, इतना बड़े बड़े सब बना रहे हैं, और अच्छा खासा पैसा भी पे कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा मिल रहा है ना। लोग जो क्या बोलते हैं, बिजनेस सपोर्ट कर रहा है एक्चुअली में, टेक मतलब टेक बिजनेस को सपोर्ट करता है। तो बिजनेस मतलब जो जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो अच्छा खासा पैसा आता है, तो मिल भी रहा है डेवलपर्स को। इसलिए तो वो सब अपन को पूरा लूप समझना पड़ेगा। और हाँ देखो, एआई में ट्रांजिशन करना इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। देखो लाइक फॉर मी एक्चुअली, I started my career from the AI itself. Okay, I seen completely up and downs and everything. Okay, in machine learning, data science, I taught lot many students. If you will go and check my YouTube channel, I also started create a video with respect to the generative AI and all. No clickbait, nothing. Just complete content, whatever people required. Okay, for taking the interview. Right, but again I would say this videos and all is just to help you. Okay, don't be into the trap. अगर आपको कोड लिखना है, प्रोडक्ट बनाना है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो आज से बैठो, खुद से कोड लिखना स्टार्ट करो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ठीक है ना। थोड़ा शुरू शुरू में पेन होता है, बट यू कैन डू इट। और मैं जय को भी यही बोलूंगा, नॉन टेक से हो जाए, अपने सराउंडिंग कहीं भी आपको कोई टेक का बंदा मिलता है आपकी कंपनी में, मतलब उससे बात करो, कोई एक आध प्रोजेक्ट को पकड़ो, यूज केस को पकड़ो, या जिसमें भी आप काम कर रहे थे पुराने, मतलब नॉन टेक में जो भी डोमेन था आपका, वहां से कोई भी एक यूज केस उठाओ, बना के उसको रिज्यूमे में डाल के अपना प्रोफाइल पिच करना स्टार्ट कर दो। और हो सके तो रेफरल से जाओ, मतलब अगर कोई आपका कनेक्शन हो, क्योंकि रेफरल ना 99% काम करता है। रेफरल में देखो क्या होता है ना, कि आपका मतलब जिसने जो भी रेफरल दे रहा है वो तो काम कर देगा अपना, फिर बाकी का काम आपका रहता है। मतलब आपकी कैपेबिलिटी है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे वो बंदा आपको रेफर कर देगा, आप कंपनी में आपका प्रोफाइल सही जगह पे पहुंच जाएगा। फिर वो आपकी कैपेबिलिटी होगी कि आप उसको क्रैक कर रहे हो, तो उस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करो कि भाई कोई भी इंटरव्यू आ जाए, मेरे को फोड़ देना है, मेरे को क्रैक कर लेना, दैट वो माइंडसेट एक बार हो गया तो निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। Right. Sunny, I have a हाँ। question. What kind of projects you told the importance of projects, right? What kind of projects we can focus on? प्रोजेक्ट वाइज देखो ऐसा है, प्रोजेक्ट वाइज पहले तो मतलब एक पाइपलाइन बनाना आना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट का रियल मीनिंग समझ आना चाहिए, है ना। और वहां पे कैसा क्या आप जैसे मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में कैसा बिल्ड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, बिल्ड में क्या होता है, अपन कोड लिखते हैं अपने सिस्टम में, फिर उसको कैसे टेस्टिंग इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं, प्रोडक्शन में डाल रहे हैं, तो एक वो पूरा पाइपलाइन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब कोई भी आप कोड लिख रहे हैं, किसी भी मतलब किसी भी डोमेन से रिलेटेड लिख रहे हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने उठा लिया, डेटा उठा लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, एक स्टोरी बिल्डअप कर लो उसके अराउंड। मतलब जैसे लेट से आपने फार्मा से उठा लिया, अब फार्मा में क्या यूज केस है, जैसे फार्मा में मेरे को क्या करना है, मेडिसिन की क्वालिटी को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है ना। ये मेरा एक यूज केस है। कोई भी एक कंपनी है, लेट से XYZ एक कंपनी है, उसने मेरे को अपना डाटा दिया, उसने बोला कि भाई ऐसा है, मेरी मेडिसिन में ऐसा ऐसा लूप होल है, आपको प्रिडिक्ट करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है ना। तो अब आपने वही एक स्टोरी बना ली,
उसके अराउंड ही आपने डेटा वेटा कलेक्ट किया, पूरा एक पाइपलाइन बनाया, उस पाइपलाइन को उठा के डिप्लॉय कर दिया। अब देखो डिप्लॉय में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जो भी सब ये सारा सब आप इंटरनेट पे ढूंढो, चैट जीपीटी पे ढूंढो, ठीक है ना। तो एक ही प्रोजेक्ट के अराउंड पहले पूरा स्टोरी क्रिएट करो अच्छे से, एंड टू एंड, ठीक है ना। वो बना के भी देखो खुद से, और इतना सब बता दोगे तो हो जाएगा। और सबसे पहली बात देखो, मैं आपको बोलूंगा थोड़ा प्रोग्रामिंग अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि यार मैंने देखा है कि जो टेक वाले लोग होते हैं ना, वो फंसते कहाँ पर है, प्रोग्रामिंग में, और थोड़े लो लेवल कॉन्सेप्ट पे वो फंस जाते हैं। अगर कोई अच्छा ढंग का बंदा मिल गया इंटरव्यू लेने वाला, देन ही विल लाइक डिच यू, मतलब वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले क्या करो, थोड़े प्रोग्रामिंग वाले कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो, थोड़ा स्पीकिंग कम्युनिकेशन ही थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है ना। आप कोई भी चीज कैसे भी पिच कर सकते हो इंटरव्यू में, दिस इज लाइक माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसा है, ठीक है। वही। एक्चुअली और क्या है ना कि जो आप बोल रहे हो कि डेटा के अराउंड स्टोरी बनाकर फिर उसको हम्म, डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, पूरी हम्म, पाइपलाइन हमें माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हम्म। तो ये बड़ी एक चैलेंज है, खासकर मेरे लिए, मैंने फेस किया है कि डेटा, रियल लाइफ डेटा मिलना बड़ा मुश्किल है। रियल लाइफ डेटा यार नहीं कोई मिल देता यार, कैगल से क्यों? मिल जाता अरे है भाई बट डेटा को लेके बहुत इश्यूज होते हैं, और कंप्लाइंस इश्यूज बहुत सारे होते हैं, कोई रियल टाइम डेटा नहीं देता भाई। अगर आपने किसी कंपनी का रियल टाइम डेटा भी निकाल लिया, तो लाइक ही कैन, दे कैन केस यू ऑन यू आल्सो, सो उसके बारे में मत सोचो। मतलब अगर आप कंपनीज में भी जाओगे ना, तो वो अपने प्राइवेट सर्वर पे काम कर रहे होते हैं, डेटा के इतने इश्यूज होते हैं, है ना। तो तो कैगल डेटा इज इनफ। क्या, कैगल का लीगल नहीं, डेटा कोई भी और दूसरे एपीआई यूपीआई से कलेक्ट कर लो, मतलब एक ऐसा कि कोई डायरेक्ट डाउनलोड नहीं किया है कहीं से एक फाइल, कहीं से फेच किया है, एचटीएमएल से निकाला है, ग्रेप कर दूसरे लिया। कोई भी एक फैंसी वेबसाइट जो कि नहीं पता किसी को भी, ऐसी कोई वेबसाइट से निकाल लो डेटा, कहीं से स्क्रैप कर लो। तो लोगों को कॉमन चीजें पता होती है ना। आप कोई भी मेरे को बोलेगा केगल से डेटा लिया, भाई मैं क्यों इंटरेस्टेड होऊंगा उस बात में। मैं बोलूंगा ओके। भाई ये तो बंदा यार नया नया बंदा। अभी यार तुम बोलोगे कोई इसी चीज को बड़ा चढ़ा के कि भाई मैंने यूपीआई से निकाला, यहाँ से निकाला डेटा, मेरे को इतने चैलेंजेस आए, फिर मैंने S3 में रख लिया, फिर क्लीन किया, तो मेरे को भी लगेगा यार कुछ तो कर रहा है ये बंदा ऐसा। तो एक थोड़ा सा वही है। You will have to understand that. ओके नाइस। अच्छा गाइस, जस्ट अ सेकंड। Maybe we have some question. Can you tell, please? तो अभी लोग सर ने जो बताया ना कि ये पूरा पूरा Okay, पाइपलाइन guys, so I think I clarify your doubts. Anything you have? Tell me. Sunny, Hmm. Somadi want to ask something. सर मेरा दो You क्वेश्चन can है। go. Yeah, Somdeep, tell me. दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सर आपने जो अभी बताया Hmm. कि ये पूरा पाइपलाइन आना चाहिए, Hmm. तो सर मैं अभी सर फ्रेशर हूँ, एक कंपनी में मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। Hmm. तो मैंने जो काम किया हूँ वो है एक चैटबॉट बनाने के ऊपर काम किया हूँ। Hmm. तो वो बनाने में सर जो डेटाबेस से जो डेटा लगता है, Hmm. तो उसका प्री प्रोसेसिंग कैसे करना है वो सब मैंने किया, क्योंकि वो बनाने में मैं इन्वॉल्व हूँ। Hmm. लेकिन क्या है ना कि सर कंपनी में डेटाबेस का एक्सेस हर कोई के पास होता नहीं है। Hmm. तो एग्जैक्ट वो डेटाबेस से डेटा जो प्री प्रोसेसिंग है वो कोड मैं अपना सीनियर मैं कैसे करना चाहता हूँ, वो मैंने जिसके पास एक्सेस है डेटाबेस का उसको भेजा हूँ, उन्होंने वो करके मुझे दिया है। Hmm. तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा पाइपलाइन के बात आप कर रहे हैं कि पूरा Hmm. डेटा प्री प्रोसेस करके डेटाबेस से लाना, उसके बाद जो आपका एक्चुअल कोड जो काम कर गया वो, Hmm. उसके बाद अब एंड में जो वो एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा कि मोबाइल या एप्लीकेशन या वेब ब्राउजर कुछ भी। Hmm. तो आप जो ये पूरे पाइपलाइन की बात कर रहे हैं सर, Hmm. तो ये जो फ्रेशर्स है और वगैरह सर, फिर भी तो मेरे को पास इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी है। Hmm. जो स्टूडेंट्स है उनके पास तो इसका भी ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगा। तो ये जो मतलब प्रॉब्लम है इसको कैसे सर मतलब नहीं हैंडल नहीं, किया तो उसमें उस केस में आप तो अपना पार्ट एक्सप्लेन करो ना। मतलब पाइपलाइन का एक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जब आप भी किसी को भी, लेट से मैं आपका एक इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा कि आपका यूज केस क्या था, है ना। तो आप मेरे को पूरा यूज केस समझाएंगे, डेटा क्लीनिंग वो सारा वर्बली मेरे को बताएंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका रोल क्या था, तो आपने बोला मेरा रोल तो ये था, मैंने पूरा चैटबॉट, मैंने एप्लीकेशन पूरा मैंने ही बनाया है। तो मैं फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने उसमें क्या बनाया, आप बताएंगे कि मैंने ये पार्ट किया, तो फिर मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछूंगा। मतलब आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए, एज अ लर्नर आपने सब पढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर भी रियल टाइम में आपने जिस पे काम किया है वही चीज मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि देखो रियल टाइम का काम और वो लर्निंग वाला ना सब थोड़ा अलग होता है। जैसे मैं आपको एक कोर्स बना के प्रोजेक्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें क्या आपको पूरा सिखाऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक। बट जब आप रियल टाइम में जाएंगे, तो आप रियल टाइम में थोड़ी ना पूरा काम करने बैठेंगे, इसमें तो आपको एक छोटा सा पार्ट हैंडल करेंगे प्रोजेक्ट का। तो आपको पूरा पाइपलाइन पता होना चाहिए, यू शुड बी लाइक अवेयर अबाउट द एंटायर पाइपलाइन। बट
like you should be very good with your part. मतलब let's say you have built a model, so around to that what you have done, मतलब what was the challenges you faced, okay, and how you collaborated your team, so these kind of thing, मतलब जो भी रियल टाइम में होता है, that's it. और मैं तो बोलूंगा देखो फ्रेशर एज अ बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, अपना प्रोग्रामिंग पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। लोग क्या मतलब जब भी कोई जैसे आपको लाइक कोई भी अपॉर्चुनिटी आया, जो भी आया, ठीक है ना, दे विल जस्ट चेक विद योर बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द प्रोग्रामिंग एंड ऑल, इफ यू आर गुड विद दैट you can get the interview. And I would suggest you one more thing, go with the cloud, okay, थोड़ा क्लाउड भी पढ़ो, क्लाउड सीखो, क्योंकि इंडस्ट्री में जो मेन काम होता है वो क्लाउड पे होता है, मतलब 99% 99.9% काम तो क्लाउड सर्विसेज आना चाहिए सभी को, ठीक है ना। AWS आना चाहिए, अज्योर आना चाहिए, डिप्लॉयमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पाइपलाइन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, डॉकर डॉकर कैसे क्या यूज होता है, कौन सी सर्विस यूज होती है, ठीक है, तो ये सब आना चाहिए। ओके, डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इतना पढ़ लोगे यार तो हो जाएगा, इतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है सोमू। हाँ सर, और मेरे साथ दूसरा क्वेश्चन है। हम्म, ये मैं एक प्रॉब्लम में इससे गुजर रहा हूँ सर। हम्म, क्या तो मैं सर जब कंपनी में जब मैं गए थे, हम्म, तो उधर मेरे को ऐसा ऑफर मिला था कि 6 महीने का मुझे पहले इंटर्नशिप करना पड़ेगा, हम्म, उसके बाद वो 2 साल का वो मतलब फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हम्म, तो ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट से सर हम 3 लोग गए थे, हम्म, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम तीनों को ही सर, हम्म, हमारा इंटर्नशिप 6 महीने कंप्लीट हो गया, अभी हम्म, वो सिर्फ एक्सटेंड होता जा रहा है, किसी को भी फुल टाइम नहीं दे रहा है, ठीक हम्म, है। तो अभी तो सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं लिंक्डइन, नौकरी, ये सब से कि हम्म, बाहर से कुछ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन सर हम्म, प्रॉब्लम हम ये फेस कर रहे हैं कि ज्यादातर मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज उधर पोस्ट हरा है, सब हम्म, में ही सर वो मतलब एक्सपीरियंस के तरफ वो लोग जा रहे हैं, मतलब हम्म, तो सीवी सिलेक्ट होना फ्रेशर्स के लिए एक बहुत मुश्किल काम जो मैं फेस कर रहा हूँ। हम्म। तो सर इसके लिए आप क्या मतलब बोल। तो देखो ऐसा होता है, कंपनी अभी जैसे आपका टाइमलाइन एक्सटेंड कर रही है, तो मे बी कंपनी नहीं चाहती है अभी हायर करना, या कंपनी के पास तो पैसा नहीं है, वो उस चीज में पैसा नहीं डालना चाहते, ठीक है, वो तो एक अलग पार्ट हो गया। अभी आप कहीं और अप्लाई कर रहे हैं, लेट से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि देखो हर बार जैसे मैंने कोई एक प्रोफाइल निकाली, जैसे 3 साल का एक्सपीरियंस वाला मेरे को बंदा चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 3 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा ही लूंगा, ऐसा कोई स्टाम्प पे कोई लिख के नहीं देता, वहां पे भी ऐसा किसी के माइंड में भी नहीं होता। वो एक्चुअली में लिखते इसलिए हैं कि ताकि आपके पास वो चीज चाहते हैं, वो उस चीज से आप निकले हुए हो, वो आपने की हुई हो, वो आप मतलब कहने का मतलब वो आपके पास स्किल सेट हो वाला, है ना, वो मैटर करता है। तो अगर आपके पास 1 साल एक्सपीरियंस के पास में, 1 साल के बंदे के पास में अगर वो स्किल सेट है, वो एक्सपीरियंस है, तो वो उसको भी हायर कर लेंगे। तो उस जैसे उस केस में लेट से आपका प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात होती है रिज्यूमे में, तो उसमें ऐसा करो कि देखो इंडस्ट्री में घुसने का ट्राई करो। मैंने बोला था ना आपसे रेफरल वाला पार्ट, मतलब कुछ ऐसे लोगों को पकड़ो कि जहाँ पे जो आपका रिज्यूमे कंपनी में दे सके, मतलब मैनेजर तक या अपर मैनेजमेंट तक डायरेक्ट पहुंचा सके, ठीक है ना। तो थोड़ा इस टाइप का अगर जुगाड़ लगाओगे तो मे बी आपका हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो डायरेक्ट कभी कभार, अब जैसे अब मैंने रिज्यूमे अपलोड किया अपना, अब वो क्या होता है कि आजकल तो ऑटोमेटेड हो गया पूरा सिस्टम, तो कई सारे क्राइटेरिया वगैरह से, मतलब पहले तो क्या मैनुअली चेक होता था या जो भी, आजकल तो लोगों ने ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया है, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे समथिंग लाइक दैट, सो हाउ दे आर गोइंग टू pick as the content, okay, that they are going to process that content, if the requirement is getting matched, then only your resume will be selected. So वो वाला सिस्टम में भी तो मे बी किसी किसी कारण से कभी कभार रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करो, जॉब के लिए अप्लाई करते रहो। मैंने फिर से बोला कि रेफरल के थ्रू जाओ, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि ऑलरेडी आपके लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दिखाओ यार अपना इंटर्नशिप के फॉर्म में, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट डालो, थोड़ा रिज्यूमे को अच्छा बनाओ, डेफिनेटली इट वुड बी सिलेक्टेड। समझ आ रहा है सौम्यदीप? ये बहुत ही एक बेसिक चीज होता है यार, मतलब खुद में ये सारी चीजें आ जाती है यार, मतलब जब फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना, लोगों को प्रोफाइल पिच करते हैं, तो खुद में ना इतनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है कि यार अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं तो ऐसे करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। इतना टेंशन नहीं लेने का है, आराम से सब करो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस रखो, चीजें होती हैं यार, जो सोचो डेफिनेटली वो मिलता है, ठीक है। बस वही है, कंसिस्टेंटली उसके लिए काम करते रहना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है, और उसके लिए अपना प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए कि ठीक है भाई ऐसा नहीं हो रहा तो अभी मैं को कैसे जाना है, एक दूसरा भी पाथ अपना रेडी होना चाहिए, ठीक है ना। वही सारा चीजें तो, और आजकल तो यार ओपन है मार्केट, मतलब देखो मार्केट में जॉब्स भी नहीं है, जॉब्स भी हैं, दोनों ही बातें हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है यार, मतलब काफी सारी अपॉर्चुनिटी है,
और खुद का भी कुछ कर सकते। और देखो आजकल तो मैंने देखा है कई सारे लोग ना मतलब बहुत सारे लाइक फ्रीलांसर को भी हायर कर लेते हैं। मतलब पहले काम वाम कराते हैं, चेक करते हैं कैसा क्या काम है, जो भी है सब है, ठीक है ना, और फिर डायरेक्ट लाइक हायर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। मतलब कोई अगर रिसेंटली कोई स्टार्टअप स्टार्ट हुआ हो, कोई बंदा अगर कोई कंपनी खोल रहा हो अपनी, है ना, कोई अगर इंडिविजुअल एज अ सिंगल वो होते हैं ना सोलोप्रेन्योर बोलते हैं जिसको, अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा हो, ठीक है ना, उसको टेक का हेल्प चाहिए हो, तो वहां पे भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं। ऐसा मतलब आपको कहीं ना कहीं से क्या थोड़ा सा बस एक्सपीरियंस निकालना है जो कि मार्केट में आप दिखा सको कहीं ना कहीं, अगर आप उस फेज से गुजर रहे हो ऐसा। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, मैं जब अपना कॉलेज पास आउट किया 19 में, तो उसके बाद भी मेरे पास भी जॉब नहीं था। मतलब मैं भी, बट मैं कंटिन्यूअसली काम करता गया, पढ़ता गया, लर्निंग को कभी नहीं छोड़ा, है ना। तो वो एक माइंड में क्या वो होता है ना, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया कि नहीं भाई अब तो मेरे को चीजें आ गई हैं, कुछ भी कर सकता हूँ मैं कहीं भी। और फिर वो अपॉर्चुनिटी भी आ ही जाती है, मिल ही जाती है ना। वो बोलते हैं ना भाई, जब आप उस चीज के लायक बन जाते हो तो वो चीज अपने आप आपको मिल ही जाती है ना। तो बस उस इंटेंशन से काम करते रहो, यू विल गेट इट। गॉट इट सौमिति? थैंक यू सर। हाँ Okay, guys. So I think Tanmay, now you can handle that because guys, सनी संदीप ने बहुत देर से वेट कर संदीप तो क्लियर क्यों कर ली? okay, हाँ संदीप, tell me. Yeah, hey, hi सनी। एक्चुअली मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो मतलब रैंडम ऑर्डर पे हैं, तो कुछ स्टूपिड भी हो सकता है, तो मुझे नहीं पता वो सही क्वेश्चन है कि नहीं, मैं मतलब फिर भी पूछना चाहता हूँ। अरे भाई स्टूडियो स्टूपिड नहीं होता, you can ask anything. ओके, Like that. हाँ, डीएसए चाहिए क्या? अभी हमें एंट्री डीएसए पढ़ लो यार। मतलब देखो डीएसए आना ही चाहिए। डीएसए मतलब क्या होता है कि तुम आपका लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं उससे अच्छी अगर कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, डीएसए पढ़ लो। मतलब पैसा अच्छा चाहिए, मार्केट में अच्छा पैकेज उठाना है, डीएसए को पढ़ो यार, ठीक है ना। तो क्या मैं उसको एंड में कवर कर सकता हूँ? पहले मैं आपने एंड जो में क्यों बताया। यार? अबे देखो ऐसा नहीं होता कि आप लाइक एक दिन में बैठो पूरा पढ़ दो। एक डेली की हैबिट बना लो ना कि भाई 2-3 घंटा उठ के सुबह क्वेश्चन लगाने हैं, इतना मुझे करना ही करना है, ठीक है ना। तो वो पाइल्ड अप होते होते ना एक एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, तो ऐसा नहीं करना कि आपको एक महीने 2 महीने में खत्म करना है। 6-8 महीने का, साल भर का टारगेट बनाओ अच्छा सा, ठीक है ना। 2-2 3-3 घंटे पढ़ाई करते रहो, आप देखेंगे 5-6 महीने बाद अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। और डीएसए पढ़ लो। मैं तो बोलूंगा देखो, अगर मार्केट में जाना है, अच्छी जगह बैठना है, अच्छा प्रोजेक्ट उठाना है, अच्छा काम करना है, ठीक है, डीएसए को पढ़ो, ठीक है। अभी आपने जैसे प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया था, जैसे फार्मा का, जैसे ठीक है, हमें मान लीजिए मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट माइंड में है कि मैं इसके ऊपर कुछ करना चाहता हूँ, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड में मुझे वो डेटा मिलने का कोई गारंटी है? मतलब कौन से सोर्स देखो से मैं रियल टाइम में तो डेटा का हेडक होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, जिस प्रॉब्लम स्टेट में आप काम कर रहे हो, स्टेक होल्डर का, मैनेजर का, प्रोडक्ट लीड का, ठीक है, उसमें टेंशन नहीं करनी। अगर आप खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हो यार, तो ढूंढो यार, कुछ अच्छा डेटा ढूंढो, उस पर बनाओ, ठीक है ना। उसके लिए अपना रिसर्च मारो। और मैं तो बोलूंगा, मैंने बोला ना, डोमेन को उठाओ, डोमेन को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पकड़ो, लेट्स से फार्मा, एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक छोटा मोटा डेटा ढूंढ लो, उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल दो, अगर ऐसा किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो। बस दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अभी ज्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब मैंने आपका ट्यूटोरियल नहीं देखा है, शायद देखा है, शायद जनरेटिव एआई का अपलोड कर रहे हो, तो ज्यादा डेटा साइंस प्रोजेक्ट में क्या होता है, ठीक है, मतलब केगल वाले लेवल पे बता रहा हूँ, मतलब डेटा सेट पहले से होता है, तो कुछ प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, एक्सट्रैक्शन, फिट मॉडल, ये सब तो हो गया। बाकी आपने जो बताया एंड टू एंड, आई मीन डेटा पाइपलाइन बिल्ड करने से लेकर पूरा एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट तक, तो वो हम कहाँ से सीख सकते हैं? आपने डॉक्यूमेंटेशन का एग्जांपल दिया, ठीक है। सीखने के लिए मैंने बोला ना, देखो भाई, उसके लिए यूट्यूब पे भी कंटेंट दिया हुआ है, बट कभी कभार अगर वो समझ नहीं आता है तो कोई ना कोई यार कोर्स देख लो, ठीक है ना, जहाँ पे कोई जैसा पढ़ाया जाता है। मैंने बोला ना कि कोर्स हमेशा हेल्प नहीं करते, लेकिन कभी कभार हेल्प कर देते, ठीक है ना। जैसे कि हम आई न्यूरन वगैरह में लेते थे कोर्सेज उस टाइम पे, तो यूट्यूब पे ढूंढ लो, अपने क्या बोलते हैं गिटहब पे सर्च कर लो, गिटहब पे मिल जाता है सब कुछ। गिटहब पे सर्च करोगे ना एंड टू एंड प्रोजेक्ट ऐसा करके, मेरे ही गिटहब पे कब पड़े हैं काफी सारे प्रोजेक्ट। अच्छा मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लो, अगर कुछ मिल जाए अच्छा, मेरे गिटहब विटहब पे जाके चेक कर लो, तो वहां से भी प्रोजेक्ट की एंड टू एंड पाइपलाइन उठा सकते हो, है ना। अदरवाइज क्या करो कि कुछ एक कोर्सेज को देखो जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट पढ़ाते हो, सिखाते हो, भाई थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दो उसमें। मैं तो ये बोलूंगा अगर सीखना है तो, फालतू का अननेसेसरी नहीं। ऐसा कि नहीं कि आप कोर्स पे कोर्स खरीदते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं निकल रहा। कुछ एक अच्छा आपको लगता है, 2, 5, 10 हजार तक का इन्वेस्टमेंट कर दो,
कहीं ना कहीं से कोई कोर्स उठा लो, अगर उसमें अच्छा कंटेंट दिया है, अच्छे से प्रोजेक्ट सिखाया है तो, ठीक है। तो हमें फ्रंट एंड बैक एंड मतलब पूरा फुल स्टैक आना चाहिए। फ्रंट एंड नहीं, आपको बैकएंड बनाना आना चाहिए मशीन लर्निंग को लेके, बस इतना अच्छा। काफी है। और ये एपीआई कनेक्शन वगैरह और एपीआई cloud एपीआई में हाँ, ये सब तो कोई भी बना देगा। वही है, प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, फ्रंट एंड वंट एंड की कोडिंग छोड़ के पूरा बैकएंड डिजाइन करना आना चाहिए, डेटाबेस अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन जो होता है ना, एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बोलते हैं, उतना आपको ज्ञान होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। अगर मैं अभी डेटा डोमेन में अगर स्विच करें तो मुझे कौन सा रोल पहले मुझे टारगेट करना चाहिए, डेटा एनालिस्ट का या डेटा इंजीनियर या डेटा साइंस या मैं तो बोलूंगा डेटा इंजीनियरिंग को पकड़ो, डेटा इंजीनियरिंग में जॉब्स हैं, ठीक है ना। और फिर डेटा इंजीनियरिंग से डायरेक्ट स्विच कर सकते हो डेटा साइंस पे, इंटरनली भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने भी किया डेटा इंजीनियरिंग का बहुत सारा काम किया है, जनरेटिव एआई का भी कर दिया, वो सब काम सब कॉमन ही है। मतलब ऐसा है, देखो जनरेटिव एआई मशीन लर्निंग में आ जाओगे ना, तो वहां रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा तुमको, थोड़ा सा कोड वोड लिखना पड़ता है। डेटा इंजीनियरिंग वाली साइड में भी थोड़ा सा ऐसा नहीं होता, नो कोड वाली पाइपलाइन भी होती है, बट उसमें क्लाउड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्लाउड का, सीक्वल का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है ना, टूल्स अच्छे से आनी चाहिए, ऑर्केस्ट्रेशन वाले आनी चाहिए, ठीक है, जैसे एयरफ्लो हो गया अपना, और अपना डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का अच्छे से, जैसे एसडीएफएस का नॉलेज होना चाहिए। मतलब बड़ा डाटा हैंडल करना है ना, तो कैसे करोगे, उसको कहाँ का रखोगे, कैसे रखोगे, वो एक ना सॉल्यूशन दिमाग में होना चाहिए, ऐसा कि भाई देखो इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो इतना पढ़ के जाओ क्या लोगों को भी लगे यार कि नहीं यार, भाई बंदे को भले ही काम नहीं किया लेकिन आता है, अगर कुछ ना कुछ देंगे तो कर लेगा, ऐसा ऐसा वाला सीन बनाओ अपना, ठीक है। यानी कि फ्रेशर्स को भी चांस मिल सकता है डेटा इंजीनियरिंग में डेफिनेटली मिल सकता है यार, सभी फ्रेशर ही होते हैं एक टाइम पे, होते हैं ना वो, कभी साहसी कभी बहुत ही, वही वाला सीन है यार। ठीक है। मैं जब किसी प्रोजेक्ट में काम करने जाता हूँ, जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट तरीके से कोड लिखते हैं, तो जैसे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और किसी प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना है, तो मुझे कोड क्या लिखना है, किस तरीके से शुरू करना है, तो वो माइंड में कैसे आ सकता है? भाई वो सब प्रैक्टिस से आता है, इतना सब मत सोचो भाई, पहले अपना कुछ काम कुछ करो, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाओ दो चार, ठीक है ना, अपने आप वो चीजें बनने लगी। ये सब फालतू की बातें होती है कि कैसे सोचे कैसे, आप इतना ही पहले ही सोच लोगे तो बाद में क्या करोगे यार, पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ, वो आता जाएगा सब चीज, ठीक है। चलो गाइस, मेरा एक यार मीटअप है, ठीक है, मैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनीथिंग यू कैन डायरेक्टली पुट मी ओवर द लिंक्डइन, ओके, ठीक है, ओके, Thank you so much, Sunny. टेक केयर गाइस, या बाय। Thank you.